हाँ जी स्टूडेंट्स किਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 3D ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 3D ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11th ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਬੁੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ 3D ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ x y ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 3D ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਹੋਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੀਅਰ 3D ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਪੀ ਕਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x2 minus x1 ਦੀ ਸਕੁਆਰ plus y2 minus y1 ਦੀ ਸਕੁਆਰ z2 minus z1 ਸਕੁਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 -3 4 ਐਂਡ -4 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਊ ਸੋ ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ first is x2 is -4 x1 is 1 t square y2 is 1 y1 is -3 minus plus square z2 is 2 and z1 is 4 the square सॉल्व कर लीजिए क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर 25 4 स्क्वायर 3 + 1 4 16 and 2 - 4 -2 in 4 प्लस किया क्या बन गया 45 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 5 ठीक है सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाया नेक्स्ट वन इज देखो ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕੁਇਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਏ ਲੈ ਲਿਆ 1 2 3 ਐਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ 3 2 -1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਦਾ ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪੀ ਏ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕਲਸ ਟੂ ਪੀ ਬੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ x -
1 square plus y minus 2 square plus z minus 3 square equals to x minus 3 square p and b का, y minus 2 square एंड z माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे तो स्केयर रूट खत्म हो जाओ, तो अंदर आप अप्लाई कर देंगे a माइनस बी दी होल स्केयर का फार्मूला की बन जू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्केयर प्लस 4 माइनस 4y जेड स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6z। इस साइड से एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x एक्स माइनस 3 ते अप्लाई किया, हूँ वाई माइनस 2 ते अप्लाई करो वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y जेड स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2z। देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर खत्म हो रही ने टर्म्स, उन्होंने खत्म कर दो, पिछे की बचे कॉन्स्टेंट चेक करो कौन कौन ने। कॉन्स्टेंट इज 1 4 9 प्लस कर दो की बन जू 40, पहला माइनस 2x लिख लिया माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14 इक्वल्स टू सेम एक्स वाई टर्म्स। देखो एक्स स्क्वेयर आपस च कैंसल आउट होगी, वाई स्क्वेयर ना जेड स्क्वेयर ना, क्लियर। इससे 4y प्लस 2z and the constant is 9 4 and 1 same 40। कांस्टेंट बोथ साइड की होगी, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए सेम ने। अब और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस 4y बचा क्या माइनस 2x माइनस 6z, इस साइड ले आओ प्लस 6x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। 6x तो 2 माइनस किया 4 एंड 8z 4 कॉमन निकले x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर, क्लियर। सेम देखो थर्ड क्वेश्चन है, वो भी तुसी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves so that its distance from 1 to 3 is 4 times its distance from yz plane। ठीक है, yz plane तो की होगा 4 टाइम होगा एक पॉइंट, वेरी सिंपल। फोर्थ इज, ठीक है, पॉइंट की गिवन अपन फॉर द पॉइंट चेक करो A1 2 3 पॉइंट की गिवन है 1 2 3 ਤੇ दूसरा की है भी जे वाई जेड प्लेन ते गल कर रही है तो 4 गुणा हो मीनज 4x होगा, तो पॉइंट की लैट कर लेंगे एक्स वाई जेड, पॉइंट इज एक्स वाई जेड। अब देखो ए पी ते डिस्टेंस इज 4x की बन जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बोथ साइड स्केयरिंग करांगे, ठीक है, स्केयर रूट खत्म हो जाओ, इज 16x स्क्वायर। सॉल्व कर ली, जो इक्वेशन आएगी वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इज फिफ्थ इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सेस विच आर एट अ डिस्टेंस
दिस वन फ्रॉम द दिस पॉइंट। पॉइंट की बन रहा गा, हिंट दे देनी है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस पे है तो बाई जेड पॉइंट क्या होगा, जीरो लेट कर लिया हमने, कोई पी पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस पे है तो जीरो जीरो, एक्स की क्या होगा के। ए पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास 1 -2 3, तो क्या बन जाएगा ए पी, इसका डिस्टेंस क्या है 2 स्क्वायर रूट 6। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस सॉरी चाहे के माइनस 1 स्क्वायर, बाकी 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एंड 0 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√6 और के की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल, क्लियर। अब 6th क्वेश्चन इज सेम है। क्या करना है 6th में, हमें 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट का क्या है डिस्टेंस पता है, एक पॉइंट क्या है के जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सपोज ए इज 7 1 -3 एंड बी इज 4 5 के एंड डिस्टेंस इज 30। क्या बन जाएगा 4 - 7 स्क्वायर 5 - 1 स्क्वायर के माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही प्लेन पे लाई करे। अब क्या करना है इसका, देखो 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी ए का। अब कोलिनियर कैसे होंगे, दो प्लेन का डिस्टेंस का प्लस एक प्लेन के इक्वल होगा। सपोज देखिए ए पॉइंट है -2 3 5 एंड बी इज 1 2 3, सी इज 7 0 -1। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 2 माइनस 3 स्क्वायर 5 माइनस 3 माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, क्या बन गया 3 3 इज 9 1 1 is 1 3 minus 2 2 4 4 is ठीक है प्लस क्या है 40। क्लियर। अब देखो बी सी का कर लेती है, बी सी बी पॉइंट क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड सी पॉइंट इज 7 0 -1। क्या बन जाएगा 7 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर -1 -3 स्क्वायर। 7 -1 is 6 6 is 36 plus 2 4 4 16 is 40 40 plus 36 76। आगे इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा 2 पे गया 38। सो नेक्स्ट फिर 2 1 19, so answer is 219। क्लियर। सो नेक्स्ट हम कर लेंगे ए सी का निकाल लो, सेम बन जाएगा जो आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना कि प्लस सी ए सॉरी क्या बनेगा
7 + 2 square, 0 - 3 square, -1 - 5 square. Next, 7 + 2 9. 9 is 81. 9 and 4 का 36. सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा 129. अब देखो तीनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ, कोलिनियर नहीं होंगे. अब देखो 7 क्लियर हुआ, कोलिनियर निकालना था, कैसे होगा आपको पता चल गया. अब देखो 8th इज सेम, कोलिनियर निकालना है, वैसा ही है. और 9th क्या है, राइट एंगल फाइंड आउट करना है. राइट एंगल में क्या होगा, राइट एंगल में कि एक की स्क्वायर सेम भी दूसरों के क्या होगा पॉजिटिव. देखो राइट एंगल की ऑप्शंस में 9th के देखो, हमारे पास CA² क्या होगी, AB के डिस्टेंस एंड BC का. अगर इसमें सेटिस्फाई है तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, दोनों सेम है, आप निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. नेक्स्ट चेक कीजिए 10th में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसका क्या है, तीनों क्या है हमारे पास, तीनों का डिस्टेंस क्या है, वो होगा इक्वल आएगा. क्लियर. एंड 11th इज स्क्वायर. स्क्वायर के 4 बनेंगे तो चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है ना. एंड नेक्स्ट इज रंबस. रंबस का भी क्या होगा, चारों का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा. ठीक है ना. एंड नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, हमने क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पी सच दैट दिस वन. पी पॉइंट लेक्ट कर लेंगे. पी पॉइंट क्या हो जाएगा, XYZ. और देखिए आपका 13. ए पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, 3 4 5. एंड बी पॉइंट क्या गिवन है, B is -1 3 -7. क्लियर. और P पॉइंट को लेट कर लिया हमने. P पॉइंट इज XYZ. क्या बन जाएगा, PA² + PB² = K². यही हमें कंडीशन गिवन है. PA का निकाल लो, क्या बन जाएगा, X - 3² + Y - 4² Z - 5² प्लस X - +1 हो गया B के साथ. अब Y - 3² और Z - += K². क्लियर. अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपने सॉल्व कर लेना है. सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज 14. देखो इक्वी डिस्टेंस मीन्स तीनों का हम 4 पॉइंट्स से निकालेंगे, डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा. ठीक है ना. 15 सेम है, इक्वी डिस्टेंस आपने निकालना है, 4 पॉइंट्स हैं. 4 के 4 का इक्वल करेंगे तो आपके पास इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद जो आपके 4 पॉइंट्स आएंगे उनका क्या करना है, फाइंड आल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. 4 पॉइंट्स की स्केयरिंग कर देंगे. स्केयरिंग करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे XYZ जो भी हमारी वैल्यूज आएगी. ठीक है ना. 16 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट विच आर, वो ही सेम हमने किया था. ठीक है. एक पॉइंट P ले लेंगे. P लेकर दिस वन AB, PA = PB निकाल लेंगे. 17 इज
आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म्ड जो पॉइंट्स गिवन है, तो हमने क्या करना है, जो ओ पॉइंट है वो क्या है, सर्कम सेंटर, मतलब हमारे पास देखो क्या क्या निकालना है, दिस इज ओ पॉइंट, लेट कर लो 17 इज ओ पॉइंट क्या है, -1 4 -3, क्लियर, दिस इज ओ पॉइंट। अब ए पॉइंट क्या है गिवन है, 3 2 -5, बी पॉइंट -3 8 -5 एंड सी पॉइंट -3 2 1। अब इन्होंने क्या बोला है कि सर्कुम सेंटर मीन्स अगर हम ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे, ओ बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ओ सी का निकालेंगे, तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्लियर, तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, वो आपने निकालना है। इसके बाद अब 18, फाइंड द पॉइंट इन द बाय जेड प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर बाय जेड प्लेन पे बन रहा है तो क्या होगा, एक्स वाला 0 होगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखिए आप, पी पॉइंट क्या बन जाएगा, 18 लास्ट पॉइंट 0 बी सी, क्लियर, अब ठीक है, बी सी, नेक्स्ट क्या है, ए पॉइंट इज 1 -1 0, बी पॉइंट 3 1 2 एंड सी पॉइंट 3 2 -1, तीनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, पी ए डिस्टेंस इज पी बी एंड पी सी, तीनों को इक्वल रखकर हमारे पास बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इज द आंसर। सो ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे।